अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो बेसिकली आज हम अपना लेक्चर 18 हम पढ़ेंगे और उसके अंदर द एजेंडा इज सो वी विल बी कवरिंग द टू सैंपल। हमने लास्ट क्लास में हमने वन सैंपल मीन को हमने रखा था। हमने दो क्लासेस में पहले हम वन सैंपल जी स्टैटिस्टिक्स पे थे, इसमें हमने अज्यूम किया था कि वी न्यू व्हाट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज, एंड देन इन द लास्ट क्लास वी कवर्ड द वन सैंपल मीन विद अननोन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो हमने कवर किया था। इन टुडेज क्लास we are going to cover the two sample mean when population SD is known, and then we are going to cover the similar case when we do not know what the population SD is, and there will be two cases, one which is called the unequal variance and the other one which is called equal variance, and it will be followed by the inference of population spread. So basically अब तक हम लोग सिर्फ mean पे comparison कर रहे थे, so now we will also be testing our we will be also applying our hypothesis testing on the variance of the distributions. And the last and in the last I will be touching base with the double proportion, and that will be considered final for the hypothesis testing. So we will be ending our hypothesis testing today, inshallah. Okay, so that's the agenda for today. So before we go further, let's start with a one question. Okay, and this one question is followed by so basically there are four. So a fourth grade class has 12 girls and 8 boys, and their heights are recorded on their 10 birthdays. In the sample, there is no difference in heights between boys and girls. Okay, what is the chance that the girls are taller than the boys in real world? Okay. In other words, what is the probability that the mean height of the girls is greater than the mean heights of the boys? So that's the question that is being given to us. Lekin this question is missing some important information. So we do not know what the real true population of. So what's the real difference between the. So in this case, so as you're seeing that this question is related to the two sample Z statistics. So in other words, what we are trying to say is we are trying to say that we are aware of the population standard deviation. We know what the real population standard deviation is. So based on our data, so based on the national data, we assume that the height in inches of अब ये बहुत ये डेटा बहुत सिंपलिस्टिक तरह से चल रहा है, यानी हमने बहुत चीजें अपने पास अपने रखी हैं, ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। So based on national data, we assume that the height in the inches of 10-year-old girls are like so girls' heights are normally distributed with mean 56.4 and population and standard deviation with 2.7, and the height of the 10-year-old boys are 55.7 mean and standard deviation 3.8. Okay, so the normal distributed heights are plotted below. So basically ये इनका normal distribution curve भी मेरे साथ इनकी हमने बना ली। So again, the thing that I was saying before, we are neither aware of the population mean or population deviation. In most of the cases, we assume that difference between these two populations is zero, unless specified. जैसे कि हमने यहाँ पे specify कर दिया. So here, in this case, we know that the real mean is this and this. If this thing is not given to you, you will always assume the difference between these two cases is zero. So basically, let me write the null. So null is mu1 is equal to mu2, ठीक है, and h1 in this case, so basically यहाँ पे इसको mu g कर लेते हैं, mu g is equal to mu m, and in the second case we are saying that a mu g is greater than mu m, ठीक है। ये जो हमारे नल हाइपोथेसिस के जो है इस सिनेरियोस में हमें दिया हुआ। So given this question, अगर आपको इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें हम दो मीन सेट करने, तो बेसिकली टू सैंपल्स के बारे में क्या है, अब आप खुद इस सवाल के नेचर को आप गौर करो, तो इसमें आपको दो सैंपल है, एक बॉयज का सैंपल है और गर्ल्स का सैंपल है, ठीक है। ये और इसमें एक और चीज जो मैं इस पे लिखना भूल गया अपनी स्लाइड्स के अंदर, दीज बोथ सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर,
यानी व्हाट डू आई मीन बाय इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट मीन कि अगर मैं बॉयज के सैंपल की बात करूं तो गर्ल्स के सैंपल से तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अभी जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हो सवाल के इस सवाल में, इसमें बॉयज सैंपल से गर्ल्स सैंपल से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लिहाजा ऐसे सैंपल जो आपस में इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, जैसे सैंपल साइज चेंज ना होता हो या मीन खराब ना होता हो, we have covered the independent thing in detail while we were covering the concepts related to the probability, ठीक है। उसमें ये चीज जो है हमने उसमें कवर की थी। बाय इंडिपेंडेंस आई मीन दैट द मीन शुड नॉट बी अफेक्टेड, the standard deviation should remain unaffected, the sample size should not dependent on each other, ठीक है। So that's what I mean by independence. So whenever we talk about two sample, whether it's Z statistics or T statistics, ठीक है, we will be always we will always have to make sure that our samples are independent of each other, ठीक है। So given all these conditions, so if we are trying to solve this question, so in this case, the Z statistics will be computed using this formula, okay, where x1, where x1 bar is the mean of, where x1 bar it's the mean of, x1 bar is the mean of sample 1 and x2 is the mean of sample 2, while mu1 is the real population mean of sample 1 of population 1, sorry, and the mu2 is the real population mean of population 2, okay. So these and we are dividing this difference, and we are dividing this difference by the standard deviation. So in this case we are dividing this with these standard errors of both. अगर आप इस फॉर्मूले को देखो तो ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है इसके अंदर। ये हम इसमें से माइनस क्यों कर रहे हैं? अगर आपको याद हो, ई एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, ठीक है, ये वो फॉर्मूला अगर आप लोग याद हो जो हमने कहा था कि अगर सिंपल माइनस हो रहे हैं तो स्टैंडर्ड, तो ये इसमें क्या होगा, इसमें आपका सिंपल हम इसके अंदर जाते थे क्योंकि बिकॉज द नॉन इन और जो स्केल असम्पशन थी जो हमने एक्सपेक्टेशन हमने छोड़ा था, तो ये बन जाएगा ई एक्स वन माइनस ई एक्स टू। और जब आप ई एक्स वन हमने जैसे हमने बोला हुआ है कि हमारा ई एक्स वन क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, तो हम कहते हैं हमारा ई एक्स वन जो है इट विल बी म्यू वन माइनस ई एक्स टू इज म्यू टू। तो ये यहाँ से ये चीज़ बन के आ जाती है। हमारी वेरिएंस के बारे में जो हमने फॉर्मूला है, क्योंकि हमने वेरिएंस हमने पढ़ी थी सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, जो सिग्मा ओवर अंडर रूट एन होती है, ठीक है। तो वेरिएंस हमारी, तो हमारी वेरिएंस जो है वो इस तरह से निकली है, वेरिएंस एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। और अगर हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा वेरिएंस एक्स वन प्लस वेरिएंस एक्स टू माइनस टू इंटू कोवेरियंस ऑफ एक्स वन एक्स टू, ठीक है। टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वन एक्स टू, क्योंकि दोनों सैंपल्स इंडिपेंडेंट है तो उस वजह से ये जीरो हो जाता है, ठीक है, ये जीरो हो जाता है। और वेरिएंस एक्स वन जो है वो हमारी निकलती है सिग्मा वन स्केयर ओवर एन वन प्लस सिग्मा स्केयर टू ओवर एन टू। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने वो एक लेक्चर के बाद जिसमें आपको मैं एक्सपेक्टेशन बेस निकाला था, ये वो फॉर्मूलाज यहाँ पे दोबारा दे आर कमिंग बैक ओवर हियर एज वेल। तो ये सारे फॉर्मूलाज वो वापस आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी वेरिएंस निकलेगी सैंपल की, ये टोटल आपकी वेरिएंस है। तो इस वेरिएंस क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन आती है, स्टैंडर्ड एरर आता है, तो लिहाजा इसको हम ले लेंगे अंडर रूट, और ये वाली चीज वो यहाँ पहुंच जाती है। तो इस तरह से आप इसके जैसे हम करते थे हमारा नॉर्मल में, हम सैंपल मीन को डिवाइड करते थे रियल पॉपुलेशन मीन से, तो यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ सैंपल मीन्स को डिवाइड करेंगे with the true difference with the two difference of mean, and we are dividing it by the standard error. In that case इसमें भी standard deviation कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे z sample mean की बात हो रही है। In the coming in the when we will shift our focus towards t statistics, then we will say it's standard error, ठीक है। तो we are doing the same thing over here as well. I hope I'm making sense up till now. Let me know. सर जी सर। सर ये SRS क्या चीज है? SRS is a simple random ओके simple सर। random sample. SRS is a simple random sample. ठीक है। Are we clear up to now? Any questions? एड्रेस कर दूं? चलिए आगे।
So using those formulas, ठीक है, मैंने आपको वहाँ पे हमने सारे नंबर्स हमने ऑलरेडी वहाँ पे दिए हुए थे, तो हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन्स दैट इज कमिंग आउट टू बी 1.55 इंचेस, ठीक है, दैट इज कमिंग टू 1.55 इंचेस। और अगर आप यहाँ पे आके इसको चेक करो तो यहाँ पे मैंने क्योंकि जैसे हमने बोला था कि देयर इज नो डिफरेंस ऑफ हाइट्स इन आवर सैंपल, सो दैट इज 0, और -0.7 वैसे का वैसे ही है यहाँ पर, ठीक है, और 0.7 के बाद अब यहाँ पे 0.7, आप अगर इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो 1.5 है, और ये आपका जी इसको आ जाए 0.45, ठीक है। बाय द वे इसमें नल हाइपोथेसिस, इसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग तो हो नहीं रही, ठीक है, हमने सिर्फ वी स्टार्ट हमने यूज किया, उसके अंदर से ये फॉर्मूला जो है, अगर आप टी सेट करना चाहते तो उसके लिए तो वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम यहाँ पे नहीं कर रहे। इन दिस केस हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 0.6736। So the probability that the population mean of girls is greater than the population mean of boys is only 67%, ठीक है। यानी दूसरे लफ्जों में अगर आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और आप कहते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन these two things, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है 0.05 से बहुत बड़ी है, तो वी कैनॉट से एनीथिंग फॉर श्योर, ठीक है, वी कैनॉट से एनीथिंग फॉर श्योर इन दिस केस। अच्छा, लेकिन जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, अच्छा गाइस अब थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा गेयर अप करूंगा टू सैंपल सीरीज टेस्ट के बारे में। टू सैंपल सीरीज टेस्ट के बारे में अब मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स हमें नहीं पता होती, हम हमेशा इससे होते हैं मीन, यहाँ वहाँ मीन भी पता था, पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स भी पता थी, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं कि हमें पता चल जाए इनके बारे में, तो लिहाजा दिस इज वेरी हाईली अनलाइकली कि यू विल गेट टू नो कि व्हाट दीज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन आर। मीन तो जो स्टैंडर्ड डिवीजन तो ना हमें मीन भी नहीं पता होता, जैसा कि हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो लिहाजा in that case when we're not aware of the population standard deviation we have to rely on t distribution, ठीक है। और t distribution का अगर फॉर्मूला अगर आप गौर करो तो it is the same as the two sample three statistics, however we are replacing the population standard deviation with the sample standard deviation in this case, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की अप्रोक्सीमेशन अगर आपने टेबल से करनी हो, मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी ये सारी चीजें करके, अगर आपने उसमें सिंपल हम कहते थे n1 n-1, ठीक है, हम कहते थे वो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इस केस में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम टेबल से कंपेयर करने के लिए वैल्यू को अपनी हम दो वैल्यूज में से स्मॉलर को लेंगे, n1 को लेंगे या n2 इनमें जो वैल्यू स्मॉलर होगी हम उसको अपने डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज करेंगे फॉर अवर टेबल टू एक्सट्रैक्ट द क्रिटिकल वैल्यू, टू एक्सट्रैक्ट द सिग्निफिकेंस वैल्यू, ठीक है, हम वो भी इसमें भी चेक करेंगे। सवाल आता है तो हमें उससे बेहतर हमें एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो लिहाजा अगेन ये वही सारी चीजें हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए आपने x1 - x2 प्लस माइनस t स्टार, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय s1 स्क्वायर और s2 प्लस 1। अगर z होता तो आप सिंपल z यहाँ पे लिख देते हो, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन होती, लेकिन यहाँ पे t के बारे में भी है उसमें बात लिखी हुई है, ठीक है। मैं अभी राफे वो पिछली स्लाइड पे जो आखिरी लाइन है उसका मतलब ये है कि दोनों में से जो भी छोटी होगी हम उसको यूज बिल्कुल करेंगे। उसको यूज करेंगे, बिल्कुल। यहाँ पे सिलेबस नहीं बात लिखी हुई है, द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, द वैल्यू ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज अप्रोक्सीमेटेड बाय सॉफ्टवेयर और वी यूज द स्मॉलर ऑफ n1 - 1 एंड n2 - 1, ठीक है। ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन है, ये नॉर्मल कह रहा हूँ, यहाँ पे नॉर्मल कहना भी खतरनाक चीज है, ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्रोक्सीमेट कर रहे हो। अभी मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा कि असल फॉर्मूला क्या होता है जो कि स्टेटा या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, और मैं आपको उसके बारे में एक ड्रॉइंग स्टोरी भी सुनाऊंगा जस्ट इन अ मोमेंट। अच्छा गाइस, ये मैंने कुछ फॉर्मूलाज दिए, मैं इसको मैंने कहा यहाँ पे लिख दूं मैं, क्योंकि ना ये फॉर्मूलाज अब इक्वल, मैंने जैसे स्लाइड के शुरू में लगा था, देयर आर टू केसेस, वन इज इन विच देयर इज इक्वल वेरिएंस, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स के भी वेट्स हाइट्स थी, उसमें वेरिएंस इक्वल नहीं थी, लेकिन इट कोई पॉसिबिलिटी कि दोनों की हाइट्स फर्क हो लेकिन वेट सेम हो। इस तरह से इस बात को सोचो कि एसडीए के दो सेक्शंस हैं, ठीक है, एसडीए में दोनों बच्चे क्लासेस का मीन जो है फर्क आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर डिस्पर्शन सेम है तो आई डू नॉट हैव टू वरी दैट लॉट, लेकिन अगर मीन के बजाय अगर डिस्पर्शन फर्क आ रही है ना दोनों क्लासेस में, देन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस, ठीक है। तो लिहाजा मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मुझे आप लोगों को ग्रेड करना हो और मैं पहले डिसाइड कर लूं, अक्सर होता ही है कि अक्सर सेमेस्टर्स ना 20 सेमेस्टर में जाके डिसाइड करते हैं
कि हम क्लासेस को इकट्ठा ग्रेड करेंगे कि बाद में ग्रेड करेंगे। उसकी वजह क्या होती है, दे आर लुकिंग एट टू थिंग्स। एक वो देखते हैं कि मीन क्या चाहिए दोनों क्लासेस का और डिस्पर्शन कितनी है। अगर दोनों की क्लासेस की डिस्पर्शन सेम है ना, तो वो क्या डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आप हमको एक ही ग्रेड सबको साइन करेंगे। लेकिन अगर डिस्पर्शन भी फर्क हो गई है और मीन भी फर्क है, ठीक है, आप लोग सिर्फ मीन देख सकते हो, लेकिन इंस्ट्रक्टर के पास ये एक्सेस होती है क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन सब चीजें होती हैं, वो डेविएशन के साथ कंप्यूट करके देख सकते हैं कि दोनों क्लास का मीन कैसा चल रहा है। ठीक है, तो अगर तो डिस्पर्शन सेम है, अगर तो डिस्पर्शन सेम है तो जैसे सिग्मा वन कॉमन हो जाएगा और यहाँ बाय रो के तरह से सिग्मा वन आ जाएगा। ठीक है, 1/n1 माइनस 1/n2। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो रहा है। इन दिस केस सिग्मा वन अंदर रह जाता है। इफ द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉट नोन, ठीक है, ये आपका था जी स्टैट। अगर आपका पॉपुलेशन वेरिएंस आपको नहीं पता, इन दैट केस आपका जो आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, व्हाट विल हैपन टू इट, इट विल बी x1 माइनस x2 माइनस mu1 माइनस mu2 और यहाँ पे sp आ गई। sp क्या होता है जनाब, sp इज द पूल्ड एस्टिमेटर, इट्स द पूल्ड एस्टिमेटर। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन नहीं पता हमें, तो s1 ओवर s2 कर लिया हमने और n1 करके हमने निकाल लिया। ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं। लेकिन इन दिस केस जब हमें पॉपुलेशन वेरिएंस का हमें हमें पता नहीं पॉपुलेशन वेरिएंस है क्या, लेकिन वी नो कि द डिस्पर्शन अक्रॉस दीस टू ग्रुप्स विल बी द सेम। So in that case we say it's SP. And what is SP? SP is drum rolls और वो है ये। ठीक है, in that case your population distribution it's basically the weighted it's a weighted average। ठीक है, it's a weighted average, approximate weighted average बोलना चाहूंगा मैं इसे। It's the approximate weighted average of sample standard deviation 1 and sample standard deviation 2। ठीक है, तो और उस केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में जैसे मैंने बोला था, अनइक्वल वेरिएंस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है n1 माइनस n2 माइनस n का मिनिमम, मतलब जो मिनिमम हो गया वो ले लोगे। इन दिस केस जब इक्वल वेरिएंस हमने अज्यूम की हुई है, उस केस में वी विल से इट विल बी द सम ऑफ बोथ एंड इट विल सब्ट्रैक्टेड बाय -2। व्हाई? बिकॉज वी आर सेइंग कि दोनों का सैंपल सेम है। एक माइनस होगा आपका पहले सैंपल में से और दूसरा माइनस होगा दूसरे सैंपल में से, तो -2 इसलिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, इक्वल और अनइक्वल वेरिएंस में ये वो चीज़ है। आई गेस ये स्लाइड जब क्विज चल रहा होगा तो क्विज के दौरान यू हैव द ऑप्शन टू ओपन दी स्लाइड्स इन द बैकग्राउंड। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि स्लाइड्स ना खोलना, बल्कि इन फार्मूलाज को अपने पास किसी एक स्लाइड में सारा को कॉपी कर लेना, ताकि यू नो कि व्हाट फार्मूला टू यूज एंड हाउ टू यूज दैट फार्मूला। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस देम। ठीक है, अच्छा, नाउ वी विल बी अप्लाइंग दिस नॉलेज टू अवर राफी। सर बस ये जो इक्वल वेरिएंस वाली चीज है, क्या इससे स्पेसिफिक सवाल आएंगे या ये बस हमारी सहूलत के लिए है, या ये डिफरेंट चीज नहीं होती है नहीं, बिल्कुल? आएंगे सहूलत के लिए नहीं है, बेसिकली सवाल तो आएंगे। ठीक है, इन्हें मैं आपको बता दूंगा। द थिंग इज दिस कि आई लेट यू नो, मैं सवाल के अंदर लिख दूंगा कि यू हैव टू अज्यूम इक्वल और अनइक्वल वेरिएंस। ठीक है, इफ इफ अगर मैं ये बोल दूं, अगर इफ आई से दिस थिंग कि अगर मैंने नहीं बोला हुआ, ठीक है, ऐसा अक्सर हो सकता है कि मैंने सवाल में नहीं बोला होगा कि यार ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर तो मैं लिखना भूल गया हूँ या मैं लिखा नहीं मैंने, तो व्हाट यू कैन से इज आप अनइक्वल वेरिएंस अज्यूम कर सकते हो। ठीक है जी राफेल। सर और आखिरी चीज ये है कि जो नीचे है ना हमारा ये जो एरर वाला होता है 1/n1 लिखा है, इसमें सब्ट्रैक्शन का साइन आएगा या एडिशन का? क्योंकि पहले तो हम एडिशन का आई साइन गेस डाल रहे थे आई एम सॉरी, ये प्लस ही आएगा। मैंने मुझसे यहाँ पे लिखा गया, मैं ठीक है सर। लेट मी करेक्ट। अब मुझे यहीं पे करेक्ट करना है। थैंक यू राफेल, आपने अच्छा पकड़ लिया। मैं इसको ना उस पर भी दोबारा अपडेट कर देता हूँ। मैं करता ही हूँ कि मैं रात में लेक्चर बना रहा होता हूँ और मैं रात को लेक्चर बनाने के साथ ही मैं उसको ना उस पर अपलोड कर देता हूँ LMS के ऊपर। तो आई मेक दैट, मैं उस पर वहाँ पे इस चीज़ को मैं वहाँ पर करेक्शन कर दूंगा। मैंने वाकई इस पर गौर नहीं किया था। थैंक यू राफेल। अच्छा जी गाइस, ये प्लस है, ठीक है, माइनस नहीं है। ओके, सो
An educator believes that a new directed reading activities in the classroom will help elementary school pupils improve some aspects of the reading ability. Okay, she arranges for third class grade of 21 students to take part in these initiatives for an 8-week period. A controlled classroom of 23 grade followers follows the same curriculum without these activities. At the end of the 8 weeks, okay, at the end of the 8 weeks, all students were given a degree of reading power test, which is DRP test, which measures the aspects of reading ability that a treatment is designed to improve. The data appear in the table 7.4 जो मैंने नीचे लिखा हुआ है. So the summary statistics are this. ठीक है, so we are given the mean, we are given the standard deviation and this. ठीक है, so what we are supposed to do, we are supposed to do the हमें hypothesis testing करनी है. हमें confidence interval निकालना है. So why don't we do this? What's the time? So it's 8:35. So guys, take 5 minutes. ठीक है, take 5 minutes and I want you guys to solve this question. ठीक है, so you have to construct the hypothesis. आपको इसमें hypothesis testing करनी है. ठीक है, hypothesis testing में आपने बताना है कि so the null hypothesis, there's no difference between these two groups. ठीक है, so you have to take like 5 minutes and try to solve this question. ठीक है, ये आपके पास सवाल है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, in this case assume unequal variance. In this case, since it's not written anywhere over there, it is an equal variance, so you can say that there is an unequal variance between these two groups. और उसके लिए आप ये फॉर्मूलाज की स्क्रीनशॉट ले लो, स्पेशली इस वाले की. ठीक है, आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है. कॉन्फिडेंस इंटरवल अभी फिलहाल में छोड़ दो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करो अभी आप. ठीक है, यू हैव 5 minutes फॉर दिस एंड आई विल बी बैक इन 5 minutes. राफिज, मुझे रिमाइंड करवा देना रिकॉर्डिंग की जब मैंने दोबारा स्टार्ट करनी है. ठीक है. तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि हमने प्रैक्टिस की. मैं चाहता था प्रैक्टिस करो आप लोग. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है. जैसे कि आप देख सकते हो कि मीन 21 था और कंट्रोल ग्रुप का जो मीन था वो 23 है. तो इन दैट केस आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल की अगर हम बात करें, मैं उस पर भी आऊँगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर भी. ठीक है, अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो आपके पास T* आ गया और 4.31 आ गया. ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर में जाते हो तो सॉफ्टवेयर में आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलती हैं 37.9. ठीक है, आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मिलती है 37.9. अल्लाह माफ करे, 37.9 तो कभी नाम भी नहीं सुना होगा. डिग्री फ्रीडम होते हैं क्या? अब मैंने जो बोला था कि T20 कर लो. ठीक है, यानी आप मिनिमम देखो. मिनिमम अगर आप इसमें देखोगे तो मिनिमम क्या निकलता है गाइस? मिनिमम 20 निकलेगा और 22 निकलेगा. ठीक है, तो इन दिस केस आपका 20 यहाँ पर आ गया. तो आप टेबल में जाके 20 को देख लो, 20 पे 95% कॉन्फिडेंस लेवल क्या निकलता है. और आप देखोगे इतना ज़्यादा इंटरवल में फ़र्क नहीं है दोनों के. ठीक है, लेकिन हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ मैं जा रहा हूँ. इफ़ यू जस्ट गिव मी लाइक 5 minutes, अभी हम उसको भी इसी तरह से हम चेक करेंगे. ये नंबर 37.9 आया कहाँ से है? हसन, ये हसन मैंने कैसे पहले कि हसन सवाल करें, हम पहले बोले कि नंबर ये 37.9 आया कैसे है. ठीक है, ये नंबर बड़ा अजीब सा नंबर है. इस नंबर के लिए अगर मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला दिखाऊं, इसका फॉर्मूला ये है. स्टेटा में और दूसरे जितने भी जो हैं जो एग्जैक्ट इसकी अप्रोक्सीमेशन करते हैं वो करते हैं इस फॉर्मूला से. ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं इस फॉर्मूला से. अगर जब भी हम स्टेटा में, अब हमारी कमिंग लैब में जो मंडे की कमिंग लैब है उसमें हम इसी फॉर्मूला को यूज हम नहीं करेंगे. स्टेटा यूज कर रहा होगा ऑन द बैक एंड और टी टेबल की वैल्यू देगा और पी वैल्यू निकाल के हमें दे दिया करेगा. ठीक है, तो ये फॉर्मूला वो यूज करता है 37.9 निकालने के, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत एक वर्डी फॉर्मूला है. तो लिहाजा इन ऑर्डर टू क्योंकि हम सबको याद नहीं हो सकता, तो लिहाजा व्हाट वी डू इज we try to just take the similar an easy approach. ठीक है, which is the minimum of both numbers. अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि जब I was enrolled in this course, we were asked कि जब भी आपने ये वो फॉर्मूला यूज करना तो you will be using this formula. तो there was a whole confusion कि यार फॉर्मूला को हम यूज कैसे कर सकते हैं. तो लेकिन I was good with my memory, तो इट वाज उस टाइम हम भी जवान थे आपकी तरह, तो उस टाइम बड़ा इजी था ये फार्मूलाज याद करना. अब लगता है कि यार बहुत माउथफुल है, तो वो चीज़ थी. ठीक है, सो अगेन लुक्स you don't need to memorize it. ठीक है, just one formula. और इतनी घबराने की बात नहीं है. You just have to take the minimum of n1 और n2 and you will get the t value. ठीक है,
टी स्टैट्स के अंदर भी जैसे मैंने आपको भी फार्मूला को मैंने पहले दिखा दिया था सीक्वेंस टेस्ट का, तो दोबारा यहाँ पे कोई फार्मूला मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब इस केस में अगर हम देखें μ1, जैसे कि वही वाला एग्जांपल, जैसे μ1 से ग्रेटर μ2 है, तो इसमें जैसे राफे ने बोला था कि अगर μ1 ग्रेटर देन μ2 कर लें तो उन दोनों में इतना फर्क नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। ये 2.31 आता है, ठीक है, 2.31। राफे ये निकला था नंबर? एक सेकंड दे, मैं जरा फाइनल कैलकुलेशन कर। अच्छा, बल्कि आप सर यही है, यही है। ठीक है, अब ये 2.31 निकला है, ठीक है। अब ये क्या, यहाँ पे जो आपकी बुक है ना, ये आपकी जो बुक है, ये बुक आपकी ना बार बार उसमें आपको लेके जाएगी पी वैल्यू में, ठीक है। द पी वैल्यू में स्टडीड इज द टेस्ट इज पीटी, सॉफ्टवेयर की अप्रोक्सीमेशन, ये सॉफ्टवेयर से निकाल रहे हैं 0.0132, ठीक है, और 37.9। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 2.31 को कंपेयर कर लेते हैं अपने टेबल टी वैल्यू के साथ, जो हमारा टी वैल्यू है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि 3 क्राइटेरियाज होते हैं, इसमें वन टेल कर रहा है, तो वन टेल के अंदर हम बता देंगे उसे कि अच्छा, मेरे क्विज़ में याद रखना कि मैं आप लोगों को अल्टरनेटिव भी बता दिया करूँगा, ठीक है, आपको खुद अज्यूम नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी इसी में होगी कि वन टेल, जैसे राफे की भी कन्फ्यूजन थी कि जैसे μ1 ग्रेटर देन μ2 होना चाहिए। आप में से कुछ लोग सोच सकते होंगे कि यार इसमें डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस देगा कि डिफरेंस आता है कि नहीं आता, यानी 2 टेल कर लें। तो वो मैं आपको अपने क्विज में मैं आई लेट यू नो, ठीक है। ये मैं ऐसी चीज़ों की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपको बता दूंगा, ताकि यू नो कि विच टेस्ट या विच टेल शुड यू एम्प्लॉय। तो इन दिस केस आपने क्या करना है, 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को जाके 2.31 से कंपेयर कर लो, ठीक है। अगर आप कंपेयर करते हो तो लेट्स कंपेयर दिस थिंग। 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे, ठीक है, 20 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये है, ठीक है। और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है गाइस वो 95, कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, ठीक है। 95% पे आपकी वैल्यू आती है 2.086, ठीक है, 2.086। इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग कि हमारा जो ये नंबर है 2.31, इट इज ग्रेटर देन 2.086, जैसे कि मैंने बार बार अपने क्राइटेरिया में बताया हुआ है। तो वी विल रिजेक्ट द नल एंड वी विल से that the sample mean, that the real population mean of treatment is greater than the real population mean of control group, ठीक है। In other words, what we are trying to say is, we are trying to say that our treatment method is effective over here, ठीक है। This is what hypothesis testing is trying to tell us. The DRP scoring thing is actually a good thing for us. अच्छा, Zain. सर मैं ये पूछा था, टेबल से हमारी वैल्यू 2 पॉइंट क्या आई थी, 86 आई थी या 2.086। अच्छा 086, अच्छा मुझे लगा 86 आई है, तो मैं सोच रहा हूँ क्या ग्रेटर 2.086, किस ये तरह देखो से थी। 2.086 ये रहा, 2.086, 20 डिग्री ऑफ बस फ्रीडम पे ठीक है सर, 2.086, 95% ठीक है। लेवल, ठीक है। Again, there are some practical guidelines that we have to that आपने पहले भी मैं आपको गाइडलाइंस दिखाई थी, and those who were in the class, I told them about कि मैं क्विज में कैसे चेक कर सकता हूँ। तो again, those questions that I told you in the last class are still applicable over here, ठीक है। तो n1 plus n2 is less than 15। अगर आपका सैंपल साइज 15 से छोटा है तो आप टी टेस्ट यूज कर सकते हो, only if the data that you are provided with follows normal distribution. If it doesn't follow normal distribution, you cannot use any test for this, ठीक है। If your sample size is greater than 15 but it is less than 40, then we will use the T procedures, ठीक है। Then the T procedures can be used except in the presence of outliers or strong skewness. And in the last, if there are large samples and the data and your data is clearly skewed, there's no problem, ठीक है। You can use t-test for that as well, ठीक है। Again, there's one यहाँ पे एक और सवाल था, मैं एक और सवाल आप लोगों को लेके आया था, ठीक है। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के रिलेटेड सवाल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम इसे पढ़ते हैं तो there is an emerging evidence of relationship between timing of feeding and weight regulation. In one study, researchers followed 402 obese or overweight individuals through a 20-week weight loss treatment. To investigate the timing of food intake, participants were grouped into early eaters and late eaters based on timing of their mean meal. Here are the summary statistics of their weight loss. अब यहाँ पे देखो, इसने ना ये आपको ऑलरेडी ना ये इसने assumption दे दी है, ठीक है। The early eaters lose more weight on average, ठीक है।
Can we conclude that these two groups are not the same? ठीक है, can we conclude that these two groups are not the same? Again, here they वो strongly आपको बता रहा है कि it's a two-tailed test that you have to conduct. ठीक है, और is this observed difference mainly but with respect to see the given the variation? ठीक है, क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता है या पे बाय चांस आ गया? ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन. हाइपोथेसिस हमें ये बताने के लिए तो बनी है. ठीक है, सो आवर नल इज mu1 is equal to mu2 और दूसरा अल्टरनेटिव mu1 is not equal to mu2. इसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैन वी कंक्लूड दैट दीस टू ग्रुप्स आर नॉट द सेम. ठीक है, ये कर लिया. अब कंप्यूट द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स. x1 minus x2, s1 plus s2 और s2 वही है और आपने 3.7 निकाल लिया. अब मेरा सवाल आपसे ये है, what should be the approximate degrees of freedom? What should be the approximate degrees of freedom? Let me show you the sample size again. ये sample size है. ठीक है, approximate degrees of freedom क्या होंगे? क्या degrees of freedom ले हम लोग? चैट में जवाब आया 199. आप सब मुत्तफिक हैं इस पर? शहादतें वसूल कर रहा हूँ मैं, मुझे चांद निकालना है इस टाइम पे. आई नो इट्स अ वेरी बैड जोक. शहादतें वसूल करेंगे. ठीक है, 199 को डन कर लें. ठीक है जनाब, क्लास की मुतफक्का राय के बाद हम 199 को डन करते हैं और ये जवाब बिल्कुल ठीक है. ठीक है, 199 वैल्यू हमें चाहिए. ठीक है, लेकिन क्या 199 वैल्यू टेबल में पड़ी हुई है? अब सवाल ये आता है, टेबल को जाके देखते हैं. Now let's go and look at 199 पड़ा हुआ है इसके अंदर. 199 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता यार. अब क्या करें? टेबल तो देखना है हमें. ठीक है, तो what will we do is we will go back. ठीक है, हम क्या करेंगे? हम करेंगे ये जनाब, you won't be able to find the value for degree of freedom at 199. ठीक है, in that case we will find the next best alternative which is 100. मैं 100 पे शिफ्ट क्यों हो रहा हूँ गाइस? क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा था कि आपका सैंपल जितना बड़ा होता जाएगा वो उतना क्लोज टू नॉर्मल होगा. जैसे कि अभी आपको याद होगा मैंने आपको टी प्रोसीजर की गाइडलाइंस दिखाई थी. मैंने कहा था कि अगर 40 से बड़ा हो जाता है तो आप आराम से टी प्रोसीजर यूज कर सकते हो. ठीक है, इन दैट केस अगर आप अपने टी टेबल को देखो तो टी टेबल में 40 के बाद आपकी वेरिएशन कम रह जाती है. अब जब वेरिएशन को देखो 0.687 है, फिर 0.686, 685, 684, 683, द वैल्यूज आर नॉट चेंजिंग दैट मच. लेकिन यहाँ पे अगर आप 2-3 पे देखो तो वैल्यूज बहुत स्ट्रांगली जल्दी चेंज हो रही होती हैं. तो 40 के बाद जैसे 40 गुजर जाता है तो आपकी वैल्यूज बहुत कम चेंज होती हैं. ठीक है, तो 199 और 100 में इतना फर्क नहीं है. सो दैट्स व्हाई मैं से कि 100 वाली वैल्यूज को देख लो. 100 पे 95 वाली वैल्यू जो आती है वो आती है 1.984 आती है 1.984. वो ये वैल्यू आती है 1.984. तो इन दैट केस आपकी यहाँ से आप 1.984 आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो आपकी वैल्यू 3.71 है. आप इसको कंपेयर करोगे 1.984 से, क्योंकि आपकी 3.71 जो है वो ग्रेटर है, इट्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द 1.984. तो व्हाट यू विल से कि वी विल स्ट्रांगली रिजेक्ट दैट एंड कंक्लूड दैट द बोथ ग्रुप्स आर डिफरेंट. ठीक है, वी विल स्ट्रांगली रिजेक्ट एंड कंक्लूड दैट बोथ ऑफ ग्रुप्स आर डिफरेंट. ठीक है, अब गाइस ये इक्वल वेरिएंस का सवाल है. ठीक है, ये इक्वल वेरिएंस का सवाल है. मैं आपको दोबारा इसके लिए कितना टाइम दे दूं? लेट मी गिव यू 4 मिनट्स. ठीक है, 4 मिनट्स देता हूं मैं आपको. ये आप फॉर्मूला जो दोबारा मैंने आपको पीछे दिखाए थे मैंने आपको ये फॉर्मूला. ठीक है, इक्वल वेरिएंस के ये फॉर्मूला जो स्क्रीनशॉट ले लो इनकी, इस वाले की स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट? हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? Okay, so now let me show you this question. ये क्वेश्चन है. ठीक है, और आपको जो है इस चीज को मैंने आपको नल और अल्टरनेटिव दोनों दे दिए. ठीक है, आपने सैंपल पूल एस्टिमेट निकाला और टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकाल ली. ठीक है, आपने ये दो चीजें निकाल ली. So आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स नाउ. So we have to compute the sample pool estimator in test statistics. ठीक है, तो सैंपल आपका जो एसपी निकलेगा दैट शुड कम आउट टू बी 7.385. ठीक है,
दैट शुड कम आउट टू बी 7.385। ठीक है, 7.385 है आपके पास में सैंपल साइज, सैंपल दिया हुआ है 10 और 11 का। ठीक है, एंड देन यू कैन कंप्यूट इट। इसने पी वैल्यू निकाल दी है। मैं आपको रिकमेंड ये कहूँगा कि पी वैल्यू से बेहतर है कि आप टी क्रिटिकल वैल्यू जो है वहाँ से कंपेयर करो अपनी वैल्यू को। अगर ये वैल्यू, अगर आपका टी स्टैट जो है वो टी क्रिटिकल वैल्यू से बड़ा आ रहा है तो यू कैन से कि कॉन्फिडेंस लेवल आप रिजेक्ट कर सकते हो नल को। ठीक है, लेकिन इन दिस केस यू वॉन्ट बी एबल टू रिजेक्ट इन नल। अच्छा जी, now let's turn our focus towards another distribution, which is the f-test distribution. Okay, this is the f-test distribution, and in this case what we are interested in, the two most descriptive features of distribution are center and spread. Now we will be discussing how to do inferences about standard deviations of the normal populations. Okay, there is one recommendation about the statistical test related to the population spread, and that is don't do it without expert advice. Okay, unlike the t-test, the f-test and the other procedure of standard deviation is extremely sensitive to normal distributions. जैसे हम robustness check करते टी टेस्ट की मीन्स के ऊपर, वो बड़े रोबस्ट हैं। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा मसला नहीं करते। कंडीशंस लैक्स भी हो तो वो दे आर स्टिल ओके विद इट। लेकिन बाय रिलैक्सिंग कंडीशन मीन कि अगर डेटा बड़ा हो जाता है और डेटा स्क्यूड हो जाता है तो टी टेस्ट पे भी एप्लीकेबल है। इन दिस केस अगर आपका डेटा का साइज बड़ा हो रहा है और स्क्यूड होता जा रहा है तो एफ टेस्ट हो सकता है दैट मे स्टार्ट मिसलीडिंग यू। ठीक है, सो इन दिस केस लार्ज सैंपल साइज कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So due to limited usefulness of f-stat, ठीक है, f-stat यूज बहुत किया जाता है, लेकिन again we need to be very careful while interpreting those results. ठीक है, so I'll be discussing only one procedure, that is I'll be showing you कि उसका means हम compute कैसे कर सकते हैं। हमने टू टेल का, वन टेल तो बड़ा इजी होता है, टू टेल के केस में आपको बता रहा हूँ, वन टेल भी आप उससे आप इजीली निकाल सकते हो। देयर इज वन हैंड रेज्ड, हसन। सर ये कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन होगा एज सच? कॉन्फिडेंस यहाँ पे तो बिल्कुल 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 मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बताऊंगा हसन कि ना आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकालना है और सैंपल टी सेट भी निकालना है। इसमें तो मैंने बोला था ना अभी नहीं निकालना है, इससे मैं आपको उसमें क्विज में बताऊंगा। हाँ ये पी वैल्यू उसकी तरफ जा रहा है ना, ये पी वैल्यू जो है ना, पी वैल्यू वो उसके पी वैल्यू आप हाँ मैं पी वैल्यू बताऊँ क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि आपको लास्ट अगर लेक्चर याद है मैंने बोला था कि पी वैल्यू टी टेबल से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वो अप्रॉक्सीमेट होती है। यानी आप क्या कहोगे कि मेरी पी वैल्यू इस रेंज में आती है बट यू वांट बी एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पी वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसलिए पी वैल्यू केस में कर रहा हूँ कि बजाय कि आप अप्रॉक्सीमेशन करो, आप उसकी टी क्रिटिकल वैल्यू से कंपेयर कर लो उससे। ठीक है, तो उसके लिए ये कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो हमें गिवन होगा बिल्कुल। अगर ना गिवन हसन, अगर कॉन्फिडेंस लेवल गिवन नहीं है आपको तो 95% अज्यूम कर लेना। ठीक है, ऑलवेज अज्यूम कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 95%। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना आपका सिग्मा 1 इज नॉट सिग्मा 2 है। ठीक है, और जब एफ स्टैट आपने करना है तो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द रेशियोज ऑफ द वेरिएंसेस ऑफ सैंपल 1 टू सैंपल 2। ठीक है, एंड one more caveat over here is this कि your sample 1 मीन जो इन दोनों मीन्स इन दोनों सैंपल्स में से और सैंपल वेरिएंसेस में से, इन दोनों सैंपल वेरिएंस में जिसकी वेरिएंस आपकी बड़ी है ना वो न्यूमरेटर में जाएगी और जिसकी वेरिएंस छोटी है इन दोनों में से वो डिनोमिनेटर में जाएगी। ठीक है, और एफ डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगी n-1 और n-2 करके। ये एक और टी टेबल के साथ हम ये तीसरे टेबल हम देख रहे हैं। पहले हमने देखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फिर हमने देखा टी टेबल और अब हम देखेंगे एफ टेबल। ठीक है, एफ टेबल, तो एफ टेबल एफ डिस्ट्रीब्यूशन डिनोटेड विद एज एफ जे के। हसन सर इसकी थोड़ी सी प्रोग्रेशन समझा देंगे, जिस तरह आप ने बताया कि टी डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त यूज होगी कि जब हमारे पास पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो नोन नहीं होगा। तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन अब तब हम करेंगे जब हमने वेरिएंसेस कंपेयर करनी है आपस में, दो सैंपल्स की हमने वेरिएंस कंपेयर करनी है। दैट्स द आइडिया बिहाइंड एफ टेस्ट। ठीक है, दैट्स द आइडिया बिहाइंड एफ टेस्ट कि जब भी हमने वेरिएंस कंप्यूट करनी है, अभी तक हसन अगर आप देखो मैं जब मैं टी टेस्ट मैं मीन की बात कर रहा था कि मीन इसके इक्वल है कि नहीं है ना। अब हम चले गए मीन सेट के दूसरी तरफ पे, वेरिएंस की तरफ, कि वेरिएंस अब उसकी इक्वल है कि नहीं है।
दो आपस में सैंपल्स की, ठीक है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें आप लोग सारे, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे देखिए आप सारे कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं है, उस या टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह नहीं है, जो कि हम कहते थे कि बीच में जाके नॉर्मल हो जाती है, इसमें वो वाला काम नहीं हो रहा, ठीक है। So F distribution in this case is noted as FJK with J degrees of freedom in the numerator and K degrees of freedom in the denominator. F distributions are not symmetric but are rightly skewed. ठीक है. Why is that? Because sample variances cannot be negative. हम जानते हैं variance negative नहीं हो सकती. ठीक है. F statistics takes only positive value. That's why it's skewed. ठीक है. F distribution has no probability below zero. इसके नीचे जो यहाँ पे probability exist नहीं करती, ठीक है, क्योंकि कभी वेरिएंस जीरो हो नहीं सकती। द पीक ऑफ एफ डेंसिटी इज नियर 1, आपकी जो एफ डेंसिटी पीक है वो 1 की तरफ है, वैल्यू फार फ्रॉम 1 आइदर इन दिस केस और इन दिस केस, ठीक है। इट विल प्रोवाइड एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस और ऑफ इक्वल स्टैंडर्ड डेविएशंस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। इससे पहले कि आप लोग परेशान हो, मैं आप लोग को थोड़ा सा इसके स्टेप्स बता देता हूँ एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन एंड आई विल शो यू हाउ टू रीड द टेबल, ठीक है, हाउ टू रीड दिस टेबल, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू कंपेयर द वैल्यूज, ठीक है। अच्छा जी, टेक द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टू बी ये वाला f is equal to larger square over smaller square, compare the values of f with the critical values from f table, then double the probabilities obtained from the table to get the p value of the two sided f test. अगर two sided की बात हो रही है तो आपको probability को double करना पड़ेगा, ठीक है। The idea is we calculate the probability in the upper tail and double it to obtain the probability of ratios of all ratios on either side of the one. घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इमरान की तरह बोलूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। हम अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा एफ टेबल, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी बेसिकली। लेट मी ओपन द एफ टेबल एज वेल फॉर यू एंड वी आर ऑलमोस्ट नियर द एंड ऑफ आवर लेक्चर both in terms of slides and time, so I think we are in good places. एफ टेबल को देखोगे, मैंने एफ टेबल आपका ना उस पर भी अपलोड किया आपके एलएमएस के ऊपर, तो एफ टेबल जितना भी आपको टेबल देगा वो देगा राइट टेल टेस्ट की वैल्यू देगा, वो हमेशा राइट टेल टेस्ट की वैल्यू देगा, आप लेफ्ट टेल की नहीं निकाल सकते उसके ऊपर से। और मैं आपको हमेशा ये करके दूंगा, मैं आपको राइट टेल का दूंगा या कहूँगा टू टेल निकाल के दिखा दो, लेफ्ट टेल वाला जो होगा ना मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी एफ में बाय डिजाइन ये रखा है कि लार्जर ऊपर आएगा और स्मॉलर नीचे आएगा, तो उसकी बात ही कोई नहीं है। अगर मैं कहूँ दूसरा करना है, लेफ्ट टेल करना है, अगर मैं बोल भी देता हूँ कि आपने लेफ्ट टेल करना है, तो लेफ्ट टेल करने का फायदा क्या, लेफ्ट टेल करने का तरीका क्या है कि आप उसको रिवर्स कर लो, लेकिन अगेन आई वॉन्ट बी डूइंग दैट बिकॉज दैट्स नॉट हाउ दीज थिंग्स आर बीइंग डन। अच्छा, हमें तो बस ये बताना है कि वेरिएंसेस इक्वल नहीं है, ठीक है। हे आदिल इज हियर, अस्सलाम वालेकुम आदिल। वालेकुम सलाम सर। I was actually worried about you and I was saying to राफे कि यार चेकअप करना किधर चला गया बेचारा। अच्छा, अब यहाँ पे गाइज ये हमने सवाल देख लिए, ये हमने देख लिया। अब मैं आपको एफ टेस्ट दिखाता हूँ। ये वो वाला है, वो प्लेसबो वाला जो भी हम देख के अभी हमारे यहाँ, ठीक है। एफ के अंदर हमारे 10 और 11 आया, 5 और 0.0, ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। वेरिएंसेस के बारे में जैसे मैंने बात की थी कि सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 और सिग्मा 1 ये आते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपका जो क्रिटिकल अगर आप यहाँ पे सिंपल देखो 2.20 आपकी एफ स्टैट आ जाता है। अब ये क्रिटिकल वैल्यू 2.35 बोल रहे हैं, ये 2.35 आई कैसे है? नाउ दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। उसके लिए डिग्री आप देखना होगा वेरिएंस ज्यादा किसकी है। वेरिएंस ज्यादा है आपकी इसकी कैल्शियम की, प्लेसबो की कम है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे ऊपर आ गया। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है और प्लेसबो की डिग्री ऑफ फ्रीडम 10 है, ठीक है। तो अगर आप अपने इस टेबल को देखो तो इस टेबल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन द न्यूमरेटर एंड देन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन द डिनोमिनेटर उसने यहाँ पे दी हुई है। तो आप न्यूमरेटर की आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है, ठीक है। इसकी अगर अब आपने देखनी है इसकी, तो यहाँ पे चलते हैं 9, नहीं ये तो नहीं है, हाँ 9 है और ये 10 है, ठीक है ना। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द डिनोमिनेटर है। आपके जो रोज में है, जो आपके रोज में नंबर्स चल रहे हैं ऊपर, उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम द न्यूमरेटर, ठीक है। और जो इधर कॉलम में आपका लिखा हुआ है वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 10% पे ये सिग्निफिकेंस लेवल है। ये 10% सिग्निफिकेंट लेवल है, ये 5% सिग्निफिकेंट लेवल है, ठीक है। यानी दूसरे में कॉन्फिडेंस लेवल जो है इसके अंदर 90% है, इसके अंदर जो है वो 95% है, इसके अंदर 99.5%, इस तरह से 97.5%, इस तरह से सारे बने हुए हैं। तो इस केस में वो नंबर आता है 2.35,
ठीक है 2.35 ये नंबर, इसके अंदर भी वो वाला क्राइटेरिया लगेगा जो एफ चाइट, अगर एफ टैबलेट से बड़ा है तो रिजेक्ट द नल, लेकिन इस केस में आप देखेंगे तो आपका एफ चाइट से छोटा है तो आप यू वांट टू रिजेक्ट द नल। इफ यू वांट टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो 10% सिग्नल लेवल को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, ठीक है, 2 टेल टेस्ट करने के लिए, जैसे अभी हम देख कर अभी आए हैं, ठीक है। बाय डबलिंग वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी इज 0.20। जी जैन। सर मैं वो टेबल में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, जो हाँ। क्या कहते हैं ये रहा। नो लाइक आई गॉट इट, ठीक है, वो समझ आ गई मुझे। मैं गलती से सोच रहा था कि ऊपर वाला लाइक न्यूमिनेटर वगैरह का क्या करना है, वो समझ आ गई मुझे, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे लेस आना था, ठीक है। अच्छा, ये जनाब हमारा था एफ टेस्ट। मैंने एफ टेस्ट पे ज़्यादा टाइम इसलिए भी लगाया क्योंकि एफ टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इतना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस में लोग इतना ज़्यादा इसको नहीं प्रेफर करते, यूज़ लाजमी करते हैं, लेकिन यू हैव टू वेरी श्योर कि आपकी जो असम्पशंस हैं, जो आपकी डेटा है वो नॉर्मल हो आपको, ठीक है। जी हसन। सर इसको जो इसकी क्रिटिकल वैल्यू है इसको लोकेट करने के लिए हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देख रहे हैं। जी लेकिन ये जो सिग्निफिकेंस लेवल है इसके साथ भी सिंक्रोनाइज करना है हमने। बिल्कुल, यानी मैं आपने दो टेबल चीज़ें, बिल्कुल टेबल में देखो ना, टेबल में अब मैं आपको दिखाता वो हूँ कहाँ गया? ये टेबल, ये देखो टेबल में ना, टेबल में यहाँ पे ये देखो ना, इसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है 9 और 10 की, उसने ये 4-5 ये क्रिटिकल वैल्यू दी है 2.35, 3.02, 3.78, 4.94, 8.96, उसने ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और साथ ये उसने प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से मुराद सिग्निफिकेंस लेवल है उसकी, कि आप सिग्निफिकेंस लेवल वो कह रहा है कि सिग्निफिकेंस लेवल आप क्या अज्यूम कर रहे हो। इसमें 10% उसने अज्यूम किया हुआ है, फिर 5% कह रहा है, ठीक है, फिर 2.5% कह रहा है। तो वो भी यानी आपने डिग्री फ्रीडम के साथ आपने कॉन्फिडेंस देना ना, एक यानी जैसे हम पहले कहते थे कि आप कॉन्फिडेंट कितना हो, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन योर फाइंडिंग्स, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल जैसे था। तो कॉन्फिडेंस लेवल का ये ऑपोजिट होता है ना 1 माइनस सिग्निफिकेंस लेवल जो है। तो ये आपने यहाँ पे वो चीज़ आपने आपने डिग्री से फ्रीडम देखनी है और सिग्निफिकेंस लेवल देखना है, जैसे हम पहले भी हम देख रहे थे टी टेबल के अंदर भी हसन, टी टेबल में ऐसे नहीं करते थे, हम डिग्री से फ्रीडम देखते साथ कॉन्फिडेंस लेवल देखते थे कि हमारे लेवल के। तो अगेन यहाँ पे एफ टेबल में वही कर रहे हैं। इसके तो वो ऑर्गेनाइजेशन फर्क है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग में लग रहा है, लेकिन इट इज द सेम एज बिफोर, ठीक है। और गाइस ये मैं आखिरी चीज पे आ रहा हूँ, जो है लार्ज, अगर आपको याद हो, मैंने जब सबसे पहले मैंने अपना लेक्चर स्टार्ट किया, लेक्चर 14 था, जिसमें इन्फ्लुएंस वो सिंगल प्रोपोर्शन थी और डबल प्रोपोर्शन थी। इसमें जी टेबल ही यूज किया जाता है। मीन्स, जब मीन्स की बात हो रही थी ना, जब मीन्स पे पॉपुलेशन डिवीजन हमें नॉन नहीं थी, तो हम लोग टी टेबल पे चले जाते हैं। लेकिन whenever we are talking about the proportion, a single proportion or double proportion, in that case we will always use the z table, ठीक है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से जान छूट जाती है, ठीक है। हमने सिंगल प्रोपोर्शन कर ली थी, यहाँ पे डबल प्रोपोर्शन की बात आती है, ठीक है। ये सवाल मैं आपको, इन सवालों को मैं आपको रन थ्रू करवाऊंगा मैं आपसे, एंड यू विल सी के दैट दे आर नॉट दैट डिफिकल्ट। तो वो ये बस फार्मूलाज ही हैं, ठीक है। आपने इन फार्मूलाज को जो है वो बस यू नीड टू अप्लाई दिस फार्मूलाज, अगर आपको ऐसा सवाल आ जाता है और आप सिंपल आप कर लोगे। इन दिस केस व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर जो डबल प्रोपोर्शन में यू विल ट्राई टू कंपेयर द प्रोपोर्शंस। जैसे टू मीन्स में यू विल ट्राई टू कंपेयर द टू मीन्स, इन दिस केस यू विल ट्राई टू कंपेयर द टू प्रोपोर्शंस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब हो रही होगी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर क्या होगा गाइस, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप assumption यहाँ से शुरू करोगे, जैसे मीन्स की हम कहते थे कि बोथ आर द सेम। इन दिस केस यू विल से कि बोथ प्रोपोर्शंस आर द सेम, द बोथ प्रोपोर्शंस आर द सेम, ठीक है। और अगर आप सिंपल वो कर रहे हो अपनी कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो वो तो उसमें आप ऐसे करोगे कि आप d इज इक्वल टू P1 माइनस P2 करोगे। स्टैंडर्ड एरर के लिए आपका फॉर्मूला उसमें अगर आपको याद हो तो था P हेड इंटू 1 माइनस P हेड ओवर N1। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि दो आ गई हैं, हमारी प्रोपोर्शंस आ गई हैं, तो वी विल बी टेकिंग अ सम एंड देन वी विल बी टेकिंग द स्क्वायर रूट। सो आपका मार्जिन ऑफ एरर बेसिकली दिस इज अ मार्जिन ऑफ एरर, जिसमें जी इंटू एस ही करते हो आप, और क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए प्लस माइनस कर दोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से निकल सकते हैं। जी हसन। प्रोपोर्शंस और सैंपल्स की थोड़ी डिस्टिंक्शन नहीं बन रही दिमाग में। इस तरह सोचो ना कि जिस तरह से हसन, मुझे एक थोड़ा टाइम दो, बस 2 मिनट दोगे, क्योंकि मैं एग्जांपल पे आऊंगा, शायद उससे आप क्लियर हो जाओ। राइट सर। अगर नहीं बनती तो फिर वी कैन सिट आफ्टर द क्लास एंड वी कैन डिस्कस इन ट्यूशन, राइट। ठीक है।
ये सवाल देखो हसन, अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, आपको याद होगा मैंने आपको एक इन क्लास असाइनमेंट दी थी, याद है हसन, जिसमें मैंने स्पीकर इन क्लास असाइनमेंट गाइस वो अगले हफ्ते में आखिरी आएगी आपको वीकेंड पे, ठीक है। हसन आपको याद है मैंने एक सवाल दिया था इंटरनेट सर्वे का, जिसमें लोग फेसबुक पे कहते हैं कि हम छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे, याद है सवाल इसमें बोला हसन, इन क्लास असाइनमेंट में आपने सवाल सॉल्व किया था। Right, sir. I remember that उस kind of a question. उसमें क्या था, उसमें मैंने कहा था ओवरऑल लोगों ने ये बोला कि यस नो बोला कि हमने छोड़ा कि नहीं छोड़ा। अब इसमें देखो क्या किया इसने, दो उसने उनको दोनों को डिवाइड कर दिया, पहले वो उसमें मेल फीमेल नहीं थे, उसमें मेल फीमेल की डायमेंशन डाल दी है। मेल में से 16 वुमेन में 16% औरतें हैं जिन्होंने बोला कि हमने जो है हमने छोड़ दी है अपनी फेसबुक यूज करना, और मर्दों में देयर आर 9% वो मेल who are saying that they have left using sorry they're spending more time on Facebook, sorry, ठीक है। So women are view with 16% of women are spending more time on Facebook, while there are only 9% male who are saying that they are spending more time on Facebook, ठीक है। तो अब इसमें proportions है ना, ये means नहीं है, ये proportions है, ठीक है। Right, तो sir. Right, sir. अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इस टेबल में जाएं तो ये टेबल आपने यहाँ इसने आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये टेबल में उसने बताया कि फेसबुक यूज करके, तो अब अगर आपने ये 12.95 यूज करने हैं, ठीक है, ये सॉरी ये नंबर्स आपने यूज करने हैं, इनका निकालना है, तो दिस इज गाइस ये आपको मैं आएगा उसमें भी दे दूंगा अपने क्लास असाइनमेंट के अंदर, अगले हफ्ते में जो असाइनमेंट आएगी उसमें आपको ये सवाल दे दूंगा कि आप इसका 95% लेवल तो कंप्यूट करें। ये फॉर्मूला आपके पास होगा, डी आपने डिफरेंस लेना है, स्टैंडर्ड एरर निकालना है, और 1.96 के साथ 95% लेवल के साथ आपने ये नंबर यहाँ से निकाल लेना है। आप आराम से उसका कॉन्फिडेंस लेवल निकाल सकते हो, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ मैं ज़रा आपको लेके आना चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एकदम से यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होता है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये है जिसमें हम दोनों पीस को हम ले रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर को हम यहाँ पे पी एक ही लेते हैं और 1 × 2 कर लेते हैं। इसकी वजह क्या है गाइस, मैंने यहाँ पे ये क्यों किया, मैंने एक ही पी क्यों लिया, 1 - 3 निकाल लेंगे पीछे। हाँ, लेकिन यहाँ पे देखो ना हसन, यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला ये था, मैं P1 + P2 अलग अलग कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो मैं यहाँ पे एक ही पी ले लेता हूँ। उसकी एक बहुत गहरी वजह है, बहुत गहरी वजह। उसकी गहरी वजह गाइस ये है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मैंने क्या बोला था कि वी स्टार्ट विद दिस अजम्पशन कि हमारा P1 = P2 है, ठीक है। वो स्टार्टेड विद अजम्पशन कि हमारा P1 = P2, ठीक है। इन दैट केस हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम इसी फॉर्मूले में अगर हम यूज करें तो हमारा P1 और P2 एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में अगर P1 P2 के बराबर हो जाएगा तो फिर उस फॉर्मूले को हम यूज करें तो P × 1 - P1, क्योंकि आप देखो नीचे जो है आपका N1 प्लस, यहाँ पे अगर P1 और ये दोनों सेम हो जाएं तो P1 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये PP कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 1/n + 1 + 1/n2 आ जाएगा। और पूल एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप इन दोनों का सम कर लोगे, x1 + x1 / n + n2। अगर आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही है तो मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूँ, जो सवाल अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो the sample proportions are certainly quite different, but we'll perform a significance to see if the difference is large enough or not, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, P = P1 = P2 और H1 में कहते हैं P1 not equal to P2। तो पूल एस्टिमेट ऑफ कॉमन वैल्यू इज 47 + 21 / 290/333, ये आपका 12.95 आ गया, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर, क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस, हमेशा मैंने हाइपोथेसिस से बात की है कि जब भी हम हाइपोथेसिस शुरू करते हैं तो हम इस बात से शुरू करते हैं कि वो स्टार्ट असम्पशन विद द नल बीइंग ट्रू, ठीक है। तो नल ट्रू होने का मतलब बेसिकली क्या है कि आपने 12.95 निकाला और ये वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट किया आपने, और आपका स्टैंडर्ड एरर जो है वो यहाँ पर आपका निकला है। जी वैल्यू निकालेंगे, इसका जी स्टैट निकालेंगे तो निकलेगा 2.40, और 2.40 क्योंकि 1.96 से बड़ा है, तो जो आपकी पी वैल्यू आती है, जो आपका जी क्रिटिकल वैल्यू आती है, तो आप कहोगे वी विल रिजेक्ट द नल, और वी विल से द प्रोपोर्शन इज डिफरेंस, द प्रोपोर्शन इज the proportion of people using spending more time Facebook is different between these two groups, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा आज का स्लाइड शो, जो मैंने आप लोगों के लिए एग्जैक्ट 9:30 बजे खत्म किया। देयर वर सम क्वेश्चंस। हसन, आपको क्वेश्चन जो था प्रोपोर्शन की आपको समझ आ गई आपको? राफेल, कम टू यू इन जस्ट अ मोमेंट। Yes, sir. इसमें मुझे जो समझ आ रही है ये कि बायनोमियल, अब
अगर अंडरलाइंग पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन के में रिस्पॉन्सेज हैं कि जिनको हम बायनोमियल वेरिएबल के तौर पे क्लासिफाई कर सकें, बिल्कुल तो बेसिकली उसमें हम जो है ना वो बिल्कुल ये अप्रोक्सीमेशन है, प्रोपोर्शन सब प्रोपोर्शंस, बिल्कुल ये सक्सेसेस हैं, नंबर ऑफ सक्सेसेस और ट्रायल्स, ठीक है, तो उतने लोगों से हम सवाल वो कर लेते हैं। तो लेकिन हाँ मुझे आपके अप्रोच पसंद आई ये वाली, लेकिन हम इसको नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू हम इजीली अपना काम इजी कर लेते हैं, कौन बेचारा जाए बार बार बाइनोमियल टेबल को देखने के लिए, ठीक है। राफे सर मेरा वैसे ही कोर्स से रिलेटेड एक दो सवाल थे। सर हमारा फिर अब फाइनल एग्जाम होगा, हाँ हाँ फाइनल एग्जाम होगा, तो मैंने बेटे रखी हुई है उसकी। उसका क्या हिसाब है सर कि वो किस लाइक पीरियड में आप लेंगे? यार इसकी जो डेट आरओ ने दी हुई है, हम वो आरओ वाली डेट के मुताबिक डेट आरओ ने आपको दी हुई पता है है। सर वो डेट कौन सी है? यार जमील पे अवेलेबल है, मैं जमील पे दोबारा चेक कर लेता हूँ, मुझे एक चले मैं सेकंड अगर चेक आप कर दो, लूँ। मैं जब मैं लेक्चर को जब कंक्लूड कर लूँ, ओके गाइस, यानी रिकॉर्डर्स वालों के लिए यू ऑल कैन स्टे, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।